We'll just wait for a few more minutes before we start. Let a few people join. Okay. Hello, everyone, and welcome to Sarthi by Mindspring. Sarthi by Mindspring is an initiative in which we help people sort out and fix their relationships. We empower them to fix their relationships through our live counseling and therapy session. And along with me is Sunandini. She is my colleague and counseling psychologist. So, Sunandini and me, I'm Richa. I'm the clinical hypnotherapist. Together, we talk to the person who is having any issues with respect to their relationships, and we try to sort out those issues in this live Sarthi session. So, welcome once again. And just to remind all of you that in our last Sarthi session, which was on last Saturday, we talked to a caller. Her name is Neha, and she was having relationship issues with her husband. So she found that her husband was verbally aggressive, and she is an ambitious girl. She wants to pursue her career in law, which she has not been able to do since her marriage, and she really wants to get back to work now, but because of the aggressive nature of her husband, she is not able to do so. So we talked to her, and Sunandini did a counseling session. I did a therapy session with her online as well as offline. So we'll first add Neha on this call and see how it went with her, what happened in her hypnotherapy session that I conducted, and this whole week, how her life has been. So before I connect her, I would just like to share some insights of the hypnotherapy session that Neha had this issue of relationship with a husband, and also she was suffering from some fears which were I mean, there was no justification for those fears. She was having those fears since her childhood that her husband is going to be someone with whom she is not going to get into a very good relationship for some other reason. She even had these fears that he is going to shout at her or maybe raise his hands on her. So there was no basis of this fear. She said that she has never experienced anything like that since childhood till now. So in the hypnotherapy session, we also pondered upon that fear, and we found some very shocking. I mean, the session was a revelation of some very shocking incidents that had happened with her. So which she is herself going to tell you guys about. So I'm adding Neha now to the stream. Hi Neha, can you hear us? Hi Neha. Hi Richa, hi Sunandini. How are you both? Hi. Fine. We And are what about you? I am better now. wonderful. Amazing. So Neha, would you please like to share with our viewers about what happened in your hypnotherapy session that I conducted, last week? What did you Yes, find? yes, Richa, for sure, for sure. It's my pleasure to share all my experiences with the viewers so that they could also ponder about the fears they are facing in their life, and it's no joke. And so I would like to tell each of the viewer that जो मेरा एक्सपीरियंस था विथ साइकोथेरेपी इट वाज अमेजिंग मैंने कभी इस लाइफ में भी नहीं सोचा था कि द फियर्स दैट आई हैव इन दिस लाइफ कुड बी एसोसिएटेड टू माय प्रीवियस लाइफ सो इनिशियली आई वाज स्कैर्ड कि क्या होगा बट the session was very smooth conducted by both of them and it was
very comforting. तो क्या हुआ, when I went to the sleep or whatever it was, मेरे को पहले I was into, मेरे को ऐसा लगा कि that I was into deep sleep, and मैंने ऐसा देखा कि in my previous life, I think so, it was around 1920s or 30s, if I'm not wrong, Richa, right? And Yes, yeah, it yeah, was yeah, around 1920s yeah, or yeah. 30s. I don't remember the exact year, but it was back then in 1920s and 1930s. So I was born into this small middle class family, and I think so. My parents, forced me to get married to this person, and I was too much into pursuing my career ahead. Like I wanted to be teacher, I think, at that time of, I don't remember clearly, but I think so. Yeah, I wanted to be a teacher, and then my parents forced me to get married to this person who was, I think so, 5 to 7 years elder than me. And because of his good finances, my parents were after my life to get married to this person, and he was from a big business short family, and he was He a was a zamindar. zamindar. Yeah, Okay, yeah, yeah, yeah. yeah. He was a zamindar, and I remember seeing a big, palace like Haveli. Haveli. Yeah, palace like a Haveli, and I think so. There were 2 or 3 servants, and it was just me and him who used to live in that Haveli. And what I saw over this therapy was that the husband of mine in my previous life was very abusive. When I say abusive, it means physically abusive. So he used to hit me, and he used to curse me, he used to abuse me, and if anything of that sort goes wrong, all the aggression used to come out on me. So because of that, that fear started inculcating inside me, and I was so afraid of that guy, even if he used to come near to me. That I saw, like I could actually feel the fear in my sleep. And over the time, I also saw that, you know, I lost my life in my previous life because he hit me so bad, and because of that, I completely lost my life in my previous life. And at the point of time when I was about to die, at that time also I was thinking that, oh God, in my next life, do not make a person like this to be my husband. So basically, you died with these feelings that कहीं ऐसा Yeah, मेरे साथ दोबारा yeah, ना हो. yeah. Because I clearly remember I was so much scared when, when that transition was happening. You also know that how scared I got when it was Yeah, happening. it was And with, it yeah, was it almost was, like a real experience yeah. that Oh you my were God, I going can't. through. Yes, totally, Mm. totally real experience. And it was, I was very scared actually when at the time of in my previous life, when it was happening. I was very scared, and the feel of fear of having the same person to be my husband in the next life was more frightening for me. Hmm. So this is just for the audience that, when you die with certain fears in your life, your soul basically carries on those fears into the next life. सो फॉर नेहा, जबकि उसके साथ ऐसा कुछ बचपन से आज तक नहीं हुआ ना, उसने देखा इस लाइफ में कि कोई हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं या अब्यूसिव है हस्बैंड, बट स्टिल उसको ये डर था हमेशा से कि कहीं मेरा हस्बैंड अब्यूसिव ना हो. So there was no reason for that fear, and we discovered in her hypnotherapy session that this fear was coming from a past life in which she had a very abusive husband who even killed her by beating her red and blue. So what I remember of the session was कि उसने नेहा को मारते मारते सिर पे he hit her with some object, and that is how she died. Yeah, So yeah. That was. yeah, so Neha, how did you feel
I mean, during this whole week, after your counseling session and your hypnotherapy session, how have you No, been feeling? so I have been feeling better. I'll tell you why. The reason I'm going to tell you why, because uh you made me, you know, you because of you guys, I forgave myself. I Hmm. forgave him, because I remember you telling me to go back to the life and, tell him that, whatever you did, I forgive you. Whatever you did Hmm. to me, I forgave me for being harsh to myself. So I think so, because of that, because once I have forgiven someone, I think so, I have forgiven him as well as I have forgiven myself. So I think so, because of that, I am feeling very, very light, and I am feeling very, very happy and very light. That And I could say. so you're also feeling relieved I because am feeling really. I am feeling like a big baggage is released from my back. I am feeling like that. excellent. Yeah. So that is Hmm. how we carry on the emotions, and वो release होना बहुत ज़रूरी है because वो fears and phobias which you were carrying on, they have got released, and आई थिंक सो, post that you अगर can. मैंने वो फॉरगिव नहीं किया होता तो शायद मेरे पास वो बैगेज अभी भी होता, दैट. But because I have forgiven myself, I have forgiven him, whoever that person was in the previous life. I think so. I am feeling light because of that very thing. I think so. That was a thing that was missing in my life. Hmm. Okay. So now, so now do you feel, so Nandini, you want to say something? Yeah, sure. So amazing session, Anu. Sorry, Neha. I'm very bad with remembering names. So Yeah, Neha, yes, Nandini. so yeah, actually, people keep talking to me. There are so many names to remember. I'm very bad at it. Don't mind, please. I'm Yeah, very sorry. yeah, So sure. Neha, it was a very nice thing to know that you have been through this spiritual journey and you have come out with light baggage. आपने सुना होगा गीता में भी कहा जाता है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, राइट? वो बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल. कहा जाता है क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं और उसके बाद उसकी इच्छा रखते हैं तो Hmm. उसके होने ना होने का इमोशनल बैगेज हम अपने साथ हमेशा कैरी करते रहते हैं। Right. क्यों नहीं हुआ, हो जाता तो अच्छा था, वो रिस्पॉन्स कर देते तो अच्छा था, नहीं बात करते तो अच्छा था, वो चीज अपने साथ हम कैरी करते रहते हैं। सो वंस यू रिलीज इट आउट, उसका इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट से हट जाता है। Hmm. Apart from that, apart from having such an amazing hypnotherapy session, I didn't knew that you will regress to past life. This is something very Oh different God, for yes. me. So I was thinking that, it was something related to with me from my childhood. Okay, this was so when I was taking this session, I was for sure that ये ना मेरे childhood का ही कुछ होगा. I never realized when I went to my past life. Yeah, it happens. It happens that way. So I have seen Richa doing such miracles many times. So people don't even imagine that they're going to go and have one or three rounds of their past life, but they do have, and when they come out, they feel very light. Emotionally, Yeah, बहुत सारा yeah, yeah. catharsis हो चुका होता है, and Hmm. you have a clarity on your thoughts basically. So Hmm. that's the beauty of hypnotherapy. Again, आपके कुछ doubts भी थे when you were talking here last episode कि कहीं मैं रह तो नहीं जाऊंगी और Right, मैं right, बोल right. नहीं पाऊँ. So what past about life those में तो नहीं doubts? रह जाऊंगी. हाँ. वो हाँ, तो so what about वो those till doubts now? Yeah, so I remember. So Richa will also agree with me on that. So at the moment also when I was going, to sleep and all, Richa was like, close your eyes. So at that time also I asked Richa, मैं वापस तो आ पाऊंगी ना? I have my kids to take care of. I asked Richa that, and Richa was like, please, please, now close your eyes, for God's sake, go to sleep. It's my duty to bring you back. So yeah, now And all my what doubts about are clear. the other doubt that your virtual session will happen? Will it be effective or not? So what about the other doubt that you No, had? no, no. So that's what I'm trying to tell. That मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि ये वर्चुअल सेशन है. मेरे को लगा कि रिचा मेरे एकदम साथ में बैठी हुई है, एंड जो रिचा बोल रही है मैं बस वैसा कर रही हूँ. इट वाज मेरे को एक्चुअली मुझे नहीं लगा दैट इट वाज, बट ऑल आई वांट टू से दैट whosoever is going for hypnotherapy session, make sure कि आप जहाँ पर भी बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट हो आपके साथ, जस्ट डोंट Hmm. आसपास
नॉइस वगैरह, Hmm. बिकॉज आई रिमेम्बर पहले मेरे बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, तो टीचर वाज लाइक प्लीज आप एक ऐसे रूम में जाइए जहाँ पर एक बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट हो। तो Hmm. वर्चुअल में दैट्स ऑल यू कैन डू ऑन योर एंड, कि बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए हाँ, कोई। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हम्म। So amazing. So I think good job, Richa, and good job, Anu. After नो that, ये apart And ये from तो this, या दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि ये तो अभी फिर भी एक सेशन था। आई एम प्लानिंग टू टेक मोर सेशंस विद रिचा, बिकॉज मतलब Mhm. ये तो मैं खुद के लिए भी सेशन कराना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए भी नाउ आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल टू टॉक टू माय हस्बैंड, एंड आई वांट that's what कि I was ये about to ask you. Yeah. So are you या more comfortable? Have you tried sipping a cup of tea with him in the morning and discussing few things, या taking on a, yeah? या तो अभी तक मैंने बात नहीं करी है, बट आई एम श्योर कि मैं इन अ डे और टू में प्रॉपर टाइम वगैरह देके मैं अच्छे से बहुत कॉन्फिडेंटली बात करने वाली, बिना डरे हुए, बिना उनके सो एग्रेशन आई से डरे हुए। थिंक नेहा, जो सेशन सुनंदी ने करवाया था उस दिन, इन विच शी मेड यू इमेजिन दैट यू आर सिपिंग टी विद योर या हस्बैंड एंड एंजॉयिंग इट, वो बहुत जल्दी सच होने वाला है. हाँ, So वो you बहुत जल्दी must go सच होने वाला ahead with it and you must do it. I'm very sure है। it will be a या success. आई एम या आई एम डेफिनेटली श्योर दैट माय हस्बैंड विल आल्सो एग्री इनटू गेटिंग द सेशन डन। पहले तो वो शॉक्ड होंगे कि मैंने क्या किया है, एंड देन आफ्टर दैट ही इज डेफिनेटली गोइंग टू एग्री फॉर डूइंग दिस। आई एम 110% श्योर। Amazing, amazing. So that was that. This is our intention of Sarthi, to empower या you all and make you all feel empowered within yourself. ये नहीं कि that for everything now you are looking up to us, but now we Hmm. have got gave you that confidence कि next time ऐसे situation में you'll first of all have calm. First of all, you'll calm yourself down, and then you will try and strike conversation with your husband on a very positive note. So या please Hmm. always remember happy memories and do that. And try and have you tried doing your interest and activities that I suggested you, that you start loving and feeling happy about things? So have you tried या some painting or stuff with your kids? yeah. So I have, so because of this lockdown, I have uh, searched my ghunguru and I have tied it once, and it felt really really good. Amazing, Wow, amazing. I That's haven't, very amazing. nice. yeah, I haven't started That's the great. dancing again, but just the feeling of tying back the ghunguru again was a different feeling altogether. Did it Amazing. remind you of the old happy memories with dancing? वो feel आया? या बहुत ज्यादा फील आ गया, मेरे को तो लगा कि मैं वही कॉलेज में मैं अपने कल्चरल प्रोग्राम में डांस कर रही Amazing. Amazing. So keep cherishing your memories, right? So it is like some, your drug of your life. So हूँ। या दैट्स they ट्रू। make you feel happy, high. Keep doing that. यस यस। So, Neha, you can connect back with us for your more sessions, as you were saying कि आप और कराना चाहती हैं हम लोगों के हाँ साथ. हाँ, You are आई most लेट यू नो। welcome. या Yeah, you're most welcome, and thank you so much for joining us today to share the feedback, for taking out time to be with us at this time. And we would get back in touch once again after this session. Okay? यस Thank you so much, यस Neha. रिचा, Thank you so एंड much. God thank you so bless. much, Richa and Sunandani. You guys don't know. You have been a great help for my life. I say you guys is really my Sarthi, and you guys Oh, have thank really you. made me Thank feel better. You guys are doing an amazing job. Please don't stop this and keep spreading smiles. That's the you. Thank that's Surely. the one you. thing that you guys can do in this world. Thank you Lots of so blessings. much. Thank you, Neha. Yeah. All Okay. right. Yeah. Bye. I'll drop off then. Sure. Thanks. Okay. Bye. Such a nice Those achievement, were, Richa. I think we must pat yeah, our backs now. yeah. First episode and really good thing. Yeah. Nice, very nice insight from And hypnotherapy as well. those were some really motivational words by Neha, Yeah, right? surely, definitely. Bringing smiles on everybody's faces. I guess that's what our work is all about, Yes. right? So, with the Yeah. best of intentions and to carry on doing that work, we have our next caller. Oh, we So, already have one caller with us. yes. Another caller, And and I was really worried, throughout the week that
what is going to happen. But I think you shared there was one person who was following us, right? Yes, so this person has been following us since Monday, and I'm really sorry to all those whom we could not accommodate in today's session, because as we said that whoever calls us first, we will take that person in. So we'll probably take you guys in our next sessions. But for today, our caller is so we've changed his name to maintain his maintain confidentiality of his identity. So his name is Shubham, and I'm going to bring him online now. I'm going to add him to the stream. Okay, really excited. Okay, Shubham, you are there. Can you hear us? Hi, Pam. Hi, Hi, Shubham. Shubham. Hello, ma'am. Ha, how are you? Hello. I'm fine. What about you, ma'am? बिल्कुल Very बढ़िया. good. We are And fine. and we are really really happy to see a male person coming here for help and actually discussing it on such a big platform जहाँ पे social stigma इतना है. Men don't cry, men don't have problem, they deal by themselves. Thank you so much for giving us this opportunity, Shubham. Thank you so much, ma'am. So, as we were discussing last in our last episode only, that we would prefer to have a male caller. I think our wish came true, Was and we granted. actually yes. So wonderful, absolutely, and welcome to our show, Sarthi. And I hope that we are able to help you out. ओके सो शुभम हम स्टार्ट करते हैं आप प्लीज यहाँ आए हैं आप प्लीज बताइए कि आपका क्या इशू है जिसके बारे में आप हमसे बात करना चाहते हैं Okay, ma'am. Ma'am, basically, I'm belong from Kangra, Himachal Pradesh. ओके मैम मैं रिसेंटली अभी लास्ट ईयर ही मेरी शादी हुई है हम्म अच्छा एंड 2 साल पहले हम रिलेशनशिप में थे. हर नेम इज अंकिता. अच्छा आपकी वाइफ का नाम अंकिता है यस मैम. हाँ ओके तो बताइए मैम स्टार्टिंग के जो पहला साल था एडजस्टमेंट करने में, एक दूसरे को समझने में, फैमिली के साथ गैदरिंग होने में, वो ऐसे ही निकल गया और बढ़िया निकला एकदम मैम. बट हम्म जो नेक्स्ट ईयर अब जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये दूसरा साल जो स्टार्ट हुआ है, हम्म इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ चेंजेस हम एक दूसरे के देखने को मिले हैं जो बिफोर हमारी शादी से पहले नहीं थे मैम. अच्छा लाइक हर ओके डोमिनेटिंग, मतलब एकदम उसका सडनली ऐसे चेंज होना जो मेरे को दिखे, जो मुझे सोच के भी मैं नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा कुछ. हम्म अच्छा तो डोमिनेटिंग नेचर से आपका एग्जैक्टली क्या मतलब है मतलब कि वो अपना चलाना चाहती हैं या मतलब किस एग्जैक्टली तरह मैम, से एग्जैक्टली मैम. ओके अच्छा ओके आपकी फैमिली में और कौन कौन रहता है शुभम आपके घर पे मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मैं रहता हूँ. अच्छा तो आप साथ में ही रह रहे थे अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम. या अभी रह रहे हैं रिसेंटली, यस मैम. नहीं, अभी तो हम साथ में नहीं रह रहे हैं बिकॉज अभी वो रिसेंटली अपने घर पे गई थी एंड ड्यूरिंग जिस दिन वो गई सेम डे लॉकडाउन हो गया था मैम. ओ अच्छा अच्छा ओके जी, ओके तो जी तब जी तक मैम. तो साथ में ही थे ना तो उनका यस एग्जैक्टली मैम. उनका बिहेवियर जो है ऐसा वो सिर्फ आपके ही साथ है या आपके पेरेंट्स के साथ भी है या उनके नहीं मैम, साथ ठीक है बस आप ही के साथ है नहीं उनके साथ नेचर बिल्कुल ठीक है मैम बिकॉज अभी रिसेंटली एक ही साल हुआ है, मतलब वो अब एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं. हम्म लेकिन जो मेरे साथ है, मैं एकदम ऐसे उसको देखना नहीं समझ पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली है तो है क्या मैम. लाइक अपनी अच्छा चलाना, उसका मतलब सेम ऐसे डोमिनेटिंग नेचर में खुद नहीं समझ पा रहा हूँ मैं. हम्म तो क्या शादी से पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल नहीं मैम. शादी से पहले डोमिनेटिंग नेचर नहीं उनका कभी आपने न- देखा नहीं मैम, ऐसा नहीं देखा है एक्चुअली मैंने पहले. ओके अच्छा जी. तो कभी आपने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की है कि ऐसे मतलब ठीक नहीं हो रहा है और मेरी बात भी सुननी चाहिए मैम कोशिश करूं या ना करूं, ये तो इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ मैम, ताकि आप मेरे को कुछ वे बताओ, कुछ रास्ता बताओ,
तभी मैं आपके पास आया हूँ कि मैं अपनी जो जो मेरे साथ जो आज के टाइम में हो रहा है, ताकि आप मेरे को कुछ ऐसा वे डालें, ऐसा मेरा एक रहा, एक ऐसा मतलब सारथी बन के चले, ताकि मुझे भी जो मेरे अराउंड लाइक इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मे बी मैं हम्म। गलत हूँ या वो गलत हूँ, इस चीज से हम निकल पाए मैम। तो क्या आप लोग की अभी बातचीत होती है? आपने बोला वो अपनी नहीं है, मम्मी के जी घर गई यस, हैं यस शायद। मैम, यस मैम, वो अपने मम्मा के घर गए हैं। एंड लॉकडाउन जिस दिन हुआ सेम डे मतलब वो वहीं पे स्टक हो गए थे मैम। तो बात ऐसी है मैम, बात हमारी होती है लाइक नॉर्मल व्हाट्सएप या जो भी हमारा कॉलिंग सोशल मीडिया होता है उसके थ्रू मैम। अच्छा। तो जी मैम। कितने दिन में, मतलब रोज होती है आपकी बात? नहीं मैम, नहीं मैम, रोज नहीं होती। 2 डेज मतलब 2 दिन में एक बार या एक या दो बार मैक्सिमम मैम। हम्म। और किस तरह की बात होती है जब होती है तो? मैम नॉर्मल बात लाइक जैसे मैंने उनकी फैमिली का पता कर लिया एंड शी टॉक अबाउट माय फैमिली एंड दैट्स इट मैम, नथिंग एल्स, नॉट मच के व्हाट गोइंग इन हर लाइफ एंड व्हाट्स गोइंग इन माय लाइफ, नथिंग एल्स मैम, जस्ट हाय एंड हाउ आर यू, दैट्स इट। अच्छा। अच्छा शुभम, आपका उनके घर में, उनके घर वालों के साथ कैसा रिलेशन है? मैम दैट्स गुड, बिकॉज मैं अच्छा। उनकी फैमिली में इतना मिक्सअप हूँ लाइक बहुत अच्छा नेचर है मैम, मतलब उनका और हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमारा एक ब्रिज है, बहुत बढ़िया है मैम। ओके। और आपको किसी भी और तरह का कोई चीज तो नहीं आती दिमाग में कि हो सकता है उनका किसी और के साथ कुछ बोलना चालना हो गया हो, या कुछ ऐसा तो नहीं है? आई एम सॉरी बट आई हैव टू आस्क सच क्वेश्चंस। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम। अच्छा। ऐसा ना मुझे इवन मुझे कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ, बिकॉज आई नो जितना मैं उससे प्यार करता हूँ, शी ऑल्सो डू सेम थिंग विद मी। बट एक मिस ऐसा कुछ मतलब एक ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसे कुछ गैप्स आ गए हैं, हम्म। मतलब ना तो उनको कुछ समझ आ रहा है और ना मुझे कुछ समझ आ रहा है मैम, कम्युनिकेशन गैप इतना आ चुका है मैम। अच्छा, कम्युनिकेशन बिल्कुल, गैप आ चुका है। ओके, बिल्कुल तो मैम, आपने बिल्कुल। बोला कि आप उससे नहीं डिस्कस कर पाए हो ये सब। आई गेस जी घर में भी शायद आपने, क्योंकि मम्मी पापा हैं, हो सकता है आपने किया हो या ना किया हो, तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ जी आपने ये डिस्कस जी किया मैम। है अपने मन की बात? अच्छा, कौन, किसके जी साथ मैम, किया है? हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, मतलब वो हमारे रिलेशनशिप्स के टाइम से ही हमें जानता है एक दूसरे को, जब हम रिलेशनशिप में आए थे। तो ओके। मैंने वो ही इज वेरी क्लोज टू मी, मैंने उससे बात की लाइक ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है एंड ये चीज मैं हम्म। फेस करता आ रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो हाँ। एक्चुअली उसने मेरे को एक सजेशन भी दी थी, लेकिन मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ बताना चाहिए या नहीं। तो एक मेरा फ्रेंड है जिससे मैंने डिस्कस की थी इस बारे में। हम्म। कोई बात नहीं, आप देखिए, अब आप आए आए हो यहाँ पे। आपने वैसे ही काफी अच्छा काम किया है यहाँ आके। आपने इतना सोचा कि आप ओपनली डिस्कस कर सकें। आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स हिडन है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप प्लीज ओपनली ऑनेस्टली सब शेयर करिए, तभी हम अच्छे से आपकी हेल्प कर सकेंगे। ओके मैम, इट इज फाइन, एक्चुअली मेरे हाँ। मेरा बताइए। फ्रेंड है, तो मैंने जब उससे बात की कि लाइक मेरे ये लाइफ में मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ही सेज हम्म। मतलब कि उसने मेरे को एक सोशल ऐप का रास्ता बताया कि आप ये ऐप यूज कीजिए। उसने मेरा फोन लेके उसमें डाउनलोड की एंड ही से कि मतलब आप एक फ्रेंड बनाइए, उसमें कम्युनिकेशन करिए एक दूसरे से। लेकिन मैं अपनी इतना लॉयल था कि मुझे नहीं, खुद अपने आप को एक बार गिल्टी फील हो रहा था कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी, बिकॉज मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हम्म। मैं घर पे आया तो दैट दैट टाइम बिफोर मतलब मैंने डिलीट मतलब जब मैंने सोचा कि एक बार मैं डिलीट करने से पहले इसे यूज करके देखूं, तो जब मैंने ओपन किया वो ऐप, तो हम्म। वहां मुझे एक फीमेल फ्रेंड के तौर पे या कुछ भी एक रैंडमली फीमेल एक मेरे को मिली, जिससे मेरी बात शुरू हो गई मैम। अच्छा। ओके। जी मैम, हर नेम फिर? इज पारुल, उनका नाम पारुल था मैम। हम हमारा एक दूसरे से बातचीत हेलो हाय नॉर्मल शुरू हो गया था मैम। हम्म। जी अच्छा। मैम। तो आपको पारुल से बात करना कैसा लगता है? मैम टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक जो मेरे एक तरफ से मैं जो अपनी वाइफ से भी बात नहीं कर पा रहा था, लाइक मैं उनसे भी बात कुछ नहीं जो शेयर कर पा रहा था,
पारुल के साथ धीरे धीरे बात ऐसा करके मतलब हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बनना शुरू हुआ, तो जो मेरी फीलिंग्स थे, जो मेरे अंदर की बात, कुछ भी मैं शेयर करना चाहता था तो मैं उसके साथ शेयर कर सकता था मैम। अच्छा, तो जी क्या मैम। आपका, अगर मैं पूछूं कि आपका कोई अफेयर चल रहा है पारुल के नहीं, साथ, या शी इज मोर लाइक अ फ्रेंड, क्या शी इज मोर रिलेशनशिप? फ्रेंड, शी इज मोर लाइक अ फ्रेंड फॉर मी। हैव यू टोल्ड हर दैट यू आर मैरिड? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट हर, और ना मैं इस चीज में हूँ कि मैं अपनी वाइफ को ऐसे चीट करूं या नहीं, बिकॉज मैं इतना उसे एक, ये तो चलो सिर्फ जस्ट अ कम्युनिकेशन गैप, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट हर विद दिस काइंड ऑफ अ स्टफ मैम। ओके, तो मतलब आप एक तरह के डिलेमा में हो कि आपको कोई चाहिए था जिसके साथ आप बातचीत कर सको, एग्जैक्टली, और उसी समय एग्जैक्टली आपके मैम। फ्रेंड ने कुछ डाउनलोड कर दी ऐप, और बाय चांस आपको कोई मिल गया जिससे आप बात करने में आपको बेटर, मतलब अच्छा फील हो रहा है। बट एग्जैक्टली मैम। एट द सेम टाइम, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर सेइंग दैट मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे गिल्टी फीलिंग हो रही है कि मैं कहीं चीट तो नहीं कर रहा उसको किसी और से बात करके। एग्जैक्टली मैम। और क्या आपने ये भी बोला कि अच्छा ये बताइए, आपने पारुल को ये नहीं बताया है कि आप मैरिड हैं? जी मैम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वो आपके हिसाब से वो चीज सही है, या आपको क्या फीलिंग है उस बात की? मैम, अकॉर्डिंग टू मी, जो उसका मेरे तरफ अट्रैक्शन है, जो उसका मेरी तरफ ओ। कम्युनिकेशन, जो हमारा एक दूसरे की तरफ बॉन्डिंग है, उसकी तरफ से टुवर्ड्स मी बहुत ज्यादा है मैम, एंड आई डोंट वांट टू हर्ट हर मैम, हम्म। एंड आई रियली फील गिल्टी अबाउट इट मैम। अच्छा, उसका भी गिल्ट है आप में? तो अब यस ठीक है, इसको अगर मैं कंप्लीट करूं इसको, तो आप अपनी आप क्या चाहते हैं अभी? आप अपना वाइफ के साथ आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या यस आप मैम। क्या चाहते Yes, ma'am. I want to continue with my wife because we have a strong bonding. We have a good memories with each other, and that's I really want that जो भी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी है, वो एक मतलब बैड ड्रीम की तरह दूर हो, एंड हम एक गुड लाइफ एंड गुड ड्रीम में जिए मैम। हैं? एक्सीलेंट। ओके, फाइन। सो शुभम, मैं आपको, आई विल पास यू ऑन ओवर टू सुनंदिनी। वो आपकी ओके। काउंसलिंग सेशन करेंगी। और उससे पहले मैं बस ये बताना चाहती हूँ सबको कि प्लीज रिमेम्बर कि दिस इज नॉट अ फुल फ्लेजेड काउंसलिंग, और इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फुल फ्लेजेड थेरेपी सेशन, बिकॉज हम लाइव कर रहे हैं ये, तो टाइम का कंस्ट्रेंट है। बट वी विल डू इट as much as it is possible, just to give you a flavor of how it is done. So सुनंदी, आप बात करिए शुभम से, आई विल बी ऑन म्यूट। Okay, sure. Hi Shubham, this is Sunandini. I'm a counseling psychologist. I have been hearing you. मैं आपको सुन रही थी जब आप रिचा से बात कर रहे थे, और मैंने सुना जी मैम। कि आप 2 साल से अपनी मतलब दूसरा साल स्टार्ट हुआ है आपका शादी का। Congratulations to you. और इससे पहले आप दोनों का थैंक यू मैम। रिलेशनशिप था, लव मैरिज थी, राइट? एंड यू आर वेरी, बोथ आर वेरी ओके एंड कंफर्टेबल टू ईच अदर फैमिली, राइट? सो वो तो कोई एक इशू नहीं है। तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है, इशू जो है वो आप दोनों के बीच में है, और मेजरली इशू हम सब सुनकर ये समझ चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का आ रहा है, डेफिनेटली। सो एक्चुअली जब हमने ये स्टार्ट किया था ना, तब भी हमने अपने क्लाइंट्स की ये इशू देखते हुए स्टार्ट किया था कि कोई तो ऐसा सारथी हो, जैसे आपने अपना सारथी अपना फ्रेंड ढूंढा, और आपकी फ्रेंड ने अपनी समझ के हिसाब से, या व्हाट ही लाइक्ड, या उसके अकॉर्डिंगली जो राइट था, या मे बी नॉट सो सीरियसली आपको सजेस्ट किया, और जब आपने उसको ट्राई किया, सो आपकी मॉरल वैल्यू से मेल ना खाते हुए भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से प्रे होकर आप उन चीजों में फंसते गए। सो इसीलिए सारथी को हम इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, टू हेल्प यू विद सम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। आपको सलाह मिले तो सलाह ऐसी मिले कि ना उससे आपका अगर फायदा भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो नुकसान भी ना हो।
आई कैन सी आपने इस दौरान काफी बार गिल्ट, ठीक है, हर्ट नहीं करना चाहता, और हमारी बातचीत बहुत अच्छी थी, अब नहीं है, इन बातों का जिक्र बहुत ज्यादा किया है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये कारण जो है मेजरली क्रॉप हो रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेटली मैं आपके साथ एक काउंसलिंग सेशन शेड्यूल करूंगी इस कमिंग वीक में, जहाँ पे रिचा भी अपना सेशन शेड्यूल करेंगी उसके बाद आपका। लेकिन फिलहाल हमें कौन कौन से एरियाज जो नजर आ रहे हैं जिन पे हमें काम करना पड़ेगा ड्यूरिंग काउंसलिंग, और समझना पड़ेगा हमारे फियर्स को, हमें कन्फ्रंट करना पड़ेगा, वो एरियाज के ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ when we talk about this, please understand relationship of two people is just not कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक जैसे हम पिक्चर में देखते हैं। रिलेशनशिप तब स्टेबल होते हैं और तब सेल करते हैं जब दो लोग एक डायरेक्शन में साथ देखते हैं। जरूरी नहीं है आप परफेक्ट हो या आपने जैसे इमेजिन किया था डेटिंग टाइम पे आपकी वाइफ को वो वैसे ही हो, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दैट यू आर रेडी टू डू अ कॉपरेशन, यू आर रेडी टू राइट नाउ मेंड योर रिलेशनशिप। दिस इज द साइन ऑफ ट्रू रिलेशनशिप। जब कोई भी एट्रोसिटी या कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद भी हम उस पर काम करना चाहें। So, Shubham, this is a good news. And I hope same is the case with Ankita. No matter what, you both cannot live without each other. So living with each other is only option. And we try to make changes in ourselves, not others. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंकिता में चेंज लाने की कोशिश करेंगे विदाउट चेंजिंग आवरसेल्फ, नहीं आएगा। फाइट, आर्गुमेंट्स यही होंगे, राइट? सो पहले हम खुद से स्टार्ट करेंगे, कहाँ कहाँ हमें लैक हो रहा है। सो प्रोबेबली अगर हम अंकिता की स्टोरी सुने तो उससे भी ये लगे कि जैसे आप पहले थे शायद अब आप नहीं है, क्योंकि चेंज हो गई ना सिचुएशन। आप पहले किसी किसी वक्त में मिलते थे, अब हम लोग सारा टाइम साथ होते हैं। लॉकडाउन से पहले भी आप घर वापस आते हैं उनके पास, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं आप, फाइनेंशियली, फैमिली, रिलेशनशिप और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, योर इन-लॉज, एवरीबडी। सिचुएशन डेटिंग टाइम से फ्री है। डेटिंग में सिर्फ आप और अंकिता हुआ करते थे, राइट? फैमिली नहीं हुआ करती थी। सो जो टाइम आप अंकिता के साथ स्पेंड करते थे वो क्वालिटी टाइम था। एग्जैक्टली मैम। डू यू मिस दैट टाइम नाउ? यस मैम। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हमें अपनी रिलेशनशिप में वो क्वालिटी टाइम्स हम भूल जाते हैं उन्हें स्पेंड करना। Those little beautiful moments that we spend with each other, impressing each other, is over now, क्योंकि सामने वाला हमारे सामने है। बट ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि सामने वाला हमारे सामने है, तो ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि अब हमें चीजों को बेटर करना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप। आप उनसे किस तरह बात करते हैं, तो उनका रिएक्शन कैसे आता है, कहाँ से चीजें बिगड़ना शुरू हुई, वो क्या कारण थे, किस तरह की बातचीत थी, उन्हें क्या दिक्कत आ रही थी, उनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि अदर साइड ऑफ द कॉइन, ताकि हमें लगे कि वो डोमिनेटिंग अगर बिहेव कर रही हैं तो क्या वो एक्चुअली डोमिनेटिंग बिहेव कर रही हैं या कोई और कारण है उनकी डोमिनेशन के पीछे। क्या वो खुद इनसिक्योर है, क्या उन्हें खुद ही एक तरह से शी इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट्स। सो यहाँ पे हमें फ्लिप कॉइन करके सबसे पहले ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें रियलाइज करना पड़ेगा क्या एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस आप कर पा रहे हैं या उन तक उसी तरह से पहुंच पा रहा है या नहीं। प्रॉब्ली आप कह रहे हो कि आई सो अ ब्लैक कैट, एंड वो ले रही हो यू सो अ ब्लैक कैट, जहां पे हमने टोन में चेंज लाया, एम्फेसिस में चेंज लाया, पूरा मतलब ही बदल गया, राइट? सो दिस इज हाउ द थिंग इज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आपने सलाह ली अपने फ्रेंड से। सलाह लेना बहुत जरूरी है, और ये आपने बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट बताया कि friend, males ho, females ho, everybody tend to have friends, and we take suggestions, we take opinion. Whenever we are in trouble, we cannot handle it all alone. So आपने अपने फ्रेंड से जो ली सलाह, उन्होंने अपने हिसाब से आपको द बेस्ट बताया होगा, लेकिन जिस प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं अब, वो है कि गिल्ट भी हो रहा है, अटैचमेंट भी हो रहा है,
आगे भी नहीं जा पा रहा हूँ, पीछे भी नहीं आ पा रहा हूँ, और प्रेजेंट में भी नहीं रह पा रहा हूँ, राइट? एग्जैक्टली मैम। एग्जैक्टली। सो इसको हमें डील करना है। अब इस गुत्थी को हम कैसे सुलझाएंगे? सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपने आप को काम डाउन करिए। इट हैपेंस, आपके साथ ही अकेले नहीं हुआ है, काफी लोगों के साथ ऐसा एक क्रॉस रोड आ जाता है जिंदगी में, जहां वो इस तरह से सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। आपने अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर रखी है दैट यू वांट टू गो अहेड विद अंकिता, राइट? राइट मैम। Your wife, right? So now the other relationship that you are in, it is something आप compensate करो। जब आप अंकिता से बात नहीं करते या उससे बात कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो पाती, तो तब हम पारुल से बात करते हैं, तब पारुल पिक्चर में आती है, राइट? और किसी के साथ भी हम सेकंड ऑप्शन में उसे रखकर अपने आप को फील बेटर करा रहे हैं, इट्स नॉट राइट। वी कैन डेफिनेटली, आपने कभी उनसे कम्युनिकेट करा, कभी आपको ऐसा लगा कि शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू? यस मैम। कैसे? कुछ सिम्टम्स दिखे, कुछ साइंस दिखे? क्या उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गई है? लाइक मैम, जब हम एक दूसरे के साथ बात करते, हमारी जब स्टार्टिंग हुई एंड धीरे धीरे जब हम एक पीक पॉइंट पे आ गए, लाइक कि हर एक बात एक दूसरे को शेयर अप करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, तब मुझे थोड़ा एक तरफ से लगा कि लाइक जो उनकी तरफ से अट्रैक्शन टुवर्ड्स मी है वो बहुत ज्यादा है मैम। शी स्टार्टेड डिस्क्लोजिंग हर पर्सनल लाइफ टू यू, और यस। आपको अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। मे बी आपसे टाइम का भी एक्सपेक्टेशन होगा उन्हें, आप फ्री हैं तो मुझसे बात करें, क्यों नहीं कर रहे हैं, यस मैम। राइट? बिल्कुल यस मैम। नेचुरल है, राइट? सो एंड डज शी सेज दैट शी लाइक्स यू लॉट? ऐसे कभी हुआ, कभी उन्होंने अपना एक्सप्रेस करना चाहा हो इमोशन डायरेक्ट वे में भी? यस मैम, लाइक पारुल आल्सो सेड आई लाइक यू अ लॉट। और आपने कह दिया आई लाइक यू लॉट आल्सो, यस मैम। या आप उस समय थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए? यस मैम। हाँ। सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि वो आपसे अटैच होती जा रही है और एक अलग लेवल पे, और वो उनके लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल होगा, जिसके आप पहले से डर में हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले खुद को फॉरगिव करके, जो हमने ये करा है एक रिलेशनशिप, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमें क्या करना है? हमें पारुल को डिस्क्लोज करने की हिम्मत करनी है। डू यू थिंक दैट वी कैन डू दैट राइट नाउ? ओके मैम, आई एम ट्राइंग माय Okay. बेस्ट मैम। You are trying, definitely. So we will not leave you like this. हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे. We're gonna थैंक think यू of मैम, the दैट्स right व्हाई आई एम words. हियर। कि right words कैसे ले, उन्हें ये सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए वेरी न्यूट्रल वे से कैसे बताएं कि यू नो पारुल, हमसे गलती हो गई और गलती ये है, और इसमें इंटेंशन हमारी बिल्कुल भी ये नहीं थी कि हम आपको हर्ट करें, राइट? इस चीज को राइट। कन्वे करके उनसे हमें माफी मांगनी है। वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम हर, राइट? सिमिलरली खुद को माफ करते हुए इस सिचुएशन में भी हमें नेक्स्ट लेवल पे अंकिता को डिस्क्लोज करना होगा। आई नो दिस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू यू, आपको सुनने में बहुत एंजाइटी फील होगी कैसे, और यही मैं नहीं करना चाहता, लेकिन देयर इज अ वे, डोंट वरी, right? Slow and steady, we can definitely do it. Okay. ओके Now मैम। at this moment, क्या होता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है, तो ये सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे आपको बहुत इमोशनली फील हो रहा होगा कि अंकिता को मैं कैसे मना करूंगा या मैं खुद को कैसे माफ करूंगा। सो उसके लिए टू फील दैट कंफर्टेबल एंड वी स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेप 1, I really, request Richa to help you with some hypnotherapy here, and we can probably take our step first here on live, and then probably we'll resume this in counseling sessions ahead. Yes, certainly, Sunandini, because even I feel that there is a lot of guilt. शुभम के अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है हर चीज को लेके। पहली चीज ये कि मैं अपनी वाइफ के साथ मेरा रिलेशन ठीक नहीं कर पा रहा। सेकंड गिल्ट ये कि मैंने पारुल से बात करनी शुरू कर दी। तीसरी गिल्ट ये कि
पारुल से बात करनी शुरू कर दी, इसका मतलब ये है कि मैं चीट कर रहा हूँ अपनी वाइफ को। और चौथा गिल्ट ये कि मैं पारुल को भी मैंने ये बोला दैट मैं मैरिड नहीं हूँ, मतलब उसको बताया नहीं कि मैं मैरिड हूँ, तो वो भी एक गिल्ट है। सो देर इज अ लॉट ऑफ गिल्ट। तो शुभम, हमें उसको सबसे पहले सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगी आपको अभी। बट बिफोर दैट आई नीड योर कंसेंट। क्या आप तैयार हैं कि आप पारुल के साथ पूरी तरह से कट ऑफ करें? इसके लिए आप यस मैम। तैयार हैं? यस ओके, मैम। सो इफ यू आर रेडी देन वील डू दिस। सो मैं जैसा जैसा बोलती जा रही हूँ, आपको वैसा वैसा विजुलाइज करना होगा इस समय। ओके, ओके मैम। कुछ ओके बोलना मैम। नहीं है, जस्ट कीप ऑन विजुलाइजिंग व्हाट आई से। So ओके to मैम। start with, just close your eyes and take 3 deep breaths. Inhale through your nose and exhale through your mouth. 1, 2, and 3. Let go. Feel that now, with every breath that you are taking, your body is going into a deep state of relaxation. आपकी हर एक सांस के साथ आपके बॉडी का हर पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। फील करें इस रिलैक्सेशन को स्प्रेड होते हुए आपके टोज से पैरों में, पैरों से एब्डोमेन में, एब्डोमेन से चेस्ट, नेक और हेड। Your body is getting deeply relaxed. And once your body gets deeply relaxed, your mind opens to bring beautiful changes in your life. At this moment, imagine or visualize that you are in a very comfortable and safe place. This can be a place in your house or any other place your mind creates for you. Once you are there, send a mental request to Parul to come and meet you here. And you will see that the moment you send this mental request, she will appear in front of you. Parul आपके सामने आ चुकी है. And she is quiet. She is waiting for you to say something to her. She knows कि आप उससे कुछ कहने वाले हैं. और अब मेंटली अपने माइंड में बिना मुंह से बोले हुए आप उसको सब कुछ सच सच बताएंगे. Tell her everything. Tell her the truth. And once you tell her the truth, also tell her that you are very sorry for doing this with her, and also express that you did not do it intentionally. It just happened. It was a mistake. You really like her as a person, but you have this guilt that by talking to her, you are doing something wrong with your wife. Just express this to her. जो भी मन में फीलिंग्स आ रही हैं, जिस तरह से आ रही हैं उसी तरह से आप बोल दीजिए उसे.
and you will see that she will forgive you. Once you ask for forgiveness, she is there and she is saying to you, I am forgiving you, Shubham. Don't worry, these things happen. और मैं तुम्हें अपने दिल से माफ कर रही हूँ. इस point पे look that there is a cord which is connecting your navel with her navel. This cord can be of any color. It may even be pulsating. On your right, you see a scissor. You pick the scissor up in your hand, and as I count from 1 to 3, at 3 you are going to cut this cord using that scissor. 1, 2, 3. Cut this cord with the scissor, and by cutting this cord, you are cutting your connection with her forever. As soon as you cut this cord, you will see that Parul will float away with her side of the cord. She will float away and disappear, and your side of the cord falls down. And at this stage, I want you to forgive yourself. In your mind, say, I forgive myself for carrying so much of guilt inside me for so long. And today I release all this guilt and I set myself free. Feel the feelings of being free from this guilt. It feels so light, so calm and peaceful. And with confidence and happiness, in a few moments, slowly open your eyes. Are you back, Shubham? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. आपको Really, कैसा really feel लगा? good. Really, really feel good, ma'am. कैसा लग रहा है आपको? It's like एक बोझ, एक अपने दिल और दिमाग से जो मैंने बोझ इतना हल्का फील कर रहा हूँ. I can't express myself to you. वेरी गुड. रिलीफ फील हो रहा है, जैसे कोई बर्डन हट गया हो. बहुत 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 मैम. लाइक मैं अभी 10 मिनट पहले जो आपको स्टार्टअप मैंने बिगनिंग अपनी कॉल पे की थी और अब जो मैं अब हूँ, लॉट्स ऑफ डिफरेंस मैम. Very good. This is how it works. You know, it really helps you release some of the stuck negative emotions जो हम इतने टाइम से कैरी ऑन कर रहे होते हैं. वो एक सेकंड के अंदर हम ब्रेक करके उनसे फ्री हो सकते हैं through these therapies. So thank you for saying yes to this, Shubham. And मैं सुनंदी से फिर से बोलूंगी, you can start talking to Shubham once again. Thank you so much, Richa. And yes, definitely. So Shubham, I'm really happy to hear कि आप अब बहुत ज़्यादा relieved feel कर रहे हो. Emotional baggage अब आपको बिल्कुल feel नहीं हो रहा है अपने ऊपर. नहीं मैम. ये पहला स्टेप है हमारा. अब जब हम इतना रिलैक्स फील करेंगे ना, तो जो हम अब वर्ड ऑफ चॉइस, अपनी टोन, अपनी इंटेंशन, उनको विदाउट एनी गिल्ट अपने फ्रेंड को, पारुल को कम्युनिकेट कर पाएंगे. वी विल बी एबल टू सीक फॉरगिवनेस. और क्योंकि अब इमोशनली आपने देयर इज एन डिसअटैचमेंट फ्रॉम पारुल, उसे अपने से दूर कर दिया है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जो उसका रिएक्शन आएगा, you're okay with it, you're not going to react to it. जैसे अगर आपको पहले इमेजिन करे तो आपको फील हो रहा होगा कि मैं नहीं सुन सकता, ना जाने वो क्या कहेगी, कितना बुरा रिएक्ट करेगी, कितना गुस्सा करेगी. सो स्पिरिचुअली, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, हमने उन्हें ऐसी एनर्जीज भेजी हैं जिसमें हमने ऑलरेडी फॉरगिवनेस सीख करी है. साथ ही साथ अपने आप को स्पिरिचुअली अट्यून किया है कि हम खुद को भी फॉरगिवनेस ले रहे हैं. और अब जो भी
हमें पारुल से एनर्जीज मिलेंगी, वो हमने एक्सचेंज करके उसे लौटा दिए हैं, हम और नहीं लेंगे। अगर वो कहेंगी दैट इज फाइन, हम उनका रिएक्शन को कहीं ना कहीं ओके समझ लेंगे। एंड वी विल गिव टाइम टू पारुल ऑल्सो टू हील हर सेल्फ, राइट शुभम? तो उनके रिएक्शन से पहले अब हम काउंसलिंग में जब बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे शुभम कि हम एक अपॉलजी लेटर या सॉरी फील करते हुए पारुल को एड्रेस करेंगे और उसमें लिखेंगे कि पारुल सॉरी, आई वांटेड टू टेल यू दैट आई एम मैरिड, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट मेरा इंटेंशन नहीं था छुपाने का, या मेरा इंटेंशन कुछ बुरा नहीं था, एक फ्रेंडशिप का था, बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली एट माई एंड, बट आई थिंक नाउ इट इज गोइंग टूवर्ड्स सम अदर साइड एंड इट्स नॉट राइट। वी कैन ऑलवेज बी फ्रेंड्स, बट इस डायरेक्शन में हम आगे नहीं जा पाएंगे, right? And you will feel sorry for not telling her that you was married, and let her develop her feelings from her side, right? ये हमारा first step होगा. Now second step आता है towards अंकिता. अंकिता को भी हमें ये कहना है, but अंकिता को disclose करना है, but उससे पहले we have to identify कि हमें अंकिता के साथ relationship में कहाँ और किस तरह से काम करना है, क्या कम्युनिकेशन और क्या गैप्स आ रहे हैं, किस तरह से हमारे ये गैप्स जो है इम्प्रूव हो सकते हैं, और ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए वी फ्रेम सेम फॉरगिवनेस सेशन विद अंकिता, right? And we'll going to text her or one-on-one talk her. I really tell you कि now please, once we'll stop talking to Parul, please do not talk to her again, and over a period of time try and work with your relationship with Ankita. एंड जब वो वापस घर आए सो आप उन्हें जरूर डिस्क्लोज करें, पर वन ऑन वन, बिकॉज इट्स बेटर टू डील दैट वे, राइट? सो आई थिंक रिचा वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग हियर. So what I wanted to say was हम ये जो हमने कॉर्ड काटी है, ठीक है, कहीं से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आई डोंट नो सुनंदनी या शुभम किसी की साइड से, एनीवे तो जो हमने कॉर्ड काटी है वो कॉर्ड का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब भी हम किसी भी तरह की रिलेशनशिप में होते हैं किसी के भी साथ, एक कॉर्ड विच इज एन इनविजिबल कॉर्ड वो हमारे बीच में डेवलप हो जाती है. इट्स एन एनर्जी कॉर्ड जो कि हम दो लोगों को कनेक्ट करती है एक दूसरे से. आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन टेलीपैथी हो रही है. टेलीपैथी क्यों होती है? बिकॉज देर इज सम इनविजिबल थिंग दैट इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ अस, जिसके थ्रू हमारे थॉट्स शेयर होते हैं. एट द सेम टाइम अगर जो भी बंदे हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से इन अ रिलेशनशिप, अगर किसी के भी साथ कुछ नेगेटिव हो रहा होता है या उसका थॉट पैटर्न किसी वजह से नेगेटिव हो जाता है, तो वो नेगेटिविटी भी उस कॉर्ड के थ्रू दूसरे पर्सन को अफेक्ट करती है. सो वेन एवर वी आर इन अ रिलेशनशिप, प्लीज बी श्योर कि जो हमारे बीच में एक इनविजिबल कॉर्ड डेवलप होगी उससे हमारा कम्युनिकेशन भी होगा, प्लस हमारी एनर्जीज भी एक दूसरे में जाएंगी उस कॉर्ड के थ्रू. So when we are ending a relationship, we have to cut that cord. अगर जैसे कि अगर किसी का सेपरेशन हुआ या इवन डाइवोर्स हुआ लेकिन हमने वो कॉर्ड कटिंग नहीं की, उससे क्या होगा कि दोनों इंसानों की जो भी एनर्जीज हैं वो उसके बाद भी एक्सचेंज होती रहेंगी. सो इफ वन पर्सन इज इन अ नेगेटिव सिचुएशन, द अदर पर्सन विल ऑल्सो कीप गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट. दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि अगर आपका रिलेशनशिप कोई भी हो वो खत्म हो रहा है तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर गेटिंग दिस कॉर्ड कटिंग थिंग डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेन्ड हिप्नोथेरेपिस्ट डेफिनेटली. तो शुभम, जो हमने कॉर्ड कटिंग की, अगर आप दोबारा से पारुल से बात करने लगेंगे तो आपकी फिर से वो कॉर्ड डेवलप हो जाएगी और फिर फिर से हमको वो पूरी एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ जाएगी. इसलिए आई सेड कि आप अगर श्योर हैं तभी हम कॉर्ड काटें. सो नाउ द कनेक्शन हैज एंडेड, वी हैव कट द कॉर्ड. प्लीज डू एज वी आर गाइडिंग यू. जैसा सुनन्नी बोल रही हैं कि आप उनको एक लेटर, अपॉलॉजी लेटर या जस्ट अ मैसेज आप प्लीज उन्हें लिख के भेजिए. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू एंड दिस कनेक्शन नाउ फॉर एवर. ओके ओके मैम. या इवन अगर आप अभी रेडी नहीं हो, आप मेंटली अभी फील करोगे दैट आई नीड सम टाइम मोर, इट्स ओके टू टेक टाइम. आप टाइम लो,
And probably when we will schedule a counseling session, during that time, we can send her a very positive note पे एक message telling her that we will not be able to continue this because of the reason. Meanwhile, आप क्या कर सकते हो, जो भी thoughts आपके मन में आ रहे हैं, please write it down. Please हाँ, keep बट noting them मीनवाइल down. बात भी नहीं करनी है उनसे. That is a requirement for cord cutting. You cannot speak to her. And Definitely, whatever you ma'am. want to talk to her and whatever you want to communicate to her, and what happens if she's going to call you again and again, that you can probably drop a message saying that, I am stuck somewhere or I'm busy, I'll get back to you soon, right? Right, And ma'am. that's it. आप उसको ऐसे लिख सकते हो. और उसके बाद में जब हम meanwhile you keep writing down what is bothering you, hurting you, how you want to deal with it, और क्या आप पारुल को कहना चाहते हो सामने. जैसे आपने अभी एक्सरसाइज करी, सारी चीजें आप लिख देना, right? So that it comes out of your heart. Once we get into counseling session, then probably we'll take it ahead, right? वहां से. Then next is Ankita. Similar thing we're going to do there, right? And we're going to understand how we're going to work in the session. अंकिता को हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो हम सबसे पहले अंकिता को बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ. ये एरिया थे हमारी लाइफ के जहां हम दोनों को मिलकर बात करनी थी, लेकिन हमें समय नहीं मिला और हम वहां बात नहीं कर पाए. जिसकी वजह से मैं इस तरह से कहीं मैंने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट इज व्हाई. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जब हो गया कि तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब यू वाज, जब आपको अंकिता नहीं मिल रही थी बात करने के लिए, आप उनसे बात कर रहे थे और यू इट वाज अ मोमेंटरी टाइम जब आप बेटर फील कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर टाइम आपको गिल्ट हो रहा था, है ना? बिल्कुल मैम. या सो हम उसने ये कम्युनिकेट करेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना था, ज्यादातर बात करने से मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ. देन उसके बाद हम ये बात करेंगे उनसे कि अभी भी माय प्रायोरिटी इज माय रिलेशनशिप. आई adore you as a person and I really want to work. I'm going to give my 100% in my relationship and we will together work it out. जब ये डिसीजन हो जाता है कि दोनों लोग डिस्पाइट ऑफ ऑल फियर और ऑल सर्कमस्टांसेस अगर सेम डायरेक्शन में काम करना चाह रहे हैं, सो इट रियली वर्क्स. आई थिंक किसी का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स नहीं आए हो, लोगों में ओपिनियन की भिड़ंत नहीं हुई हो. इट कीप ऑन हैपनिंग, दैट इज नेचुरल. अगर ऐसा ना हो तो डेफिनेटली यू हैव टू वरी. सो अगर ऐसा हो रहा है और अब हम सेम डायरेक्शन में अब सोच रहे हैं, सो अब हम लोग एक दूसरे पे गिव अप नहीं करेंगे. जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, I'll either write a love letter to you, I'll mail a letter to you, or probably I'll send a very nice message just like I used to do. So to start believing आपको तो वापस एक टाइम मिल गया है लॉकडाउन में to live your that time courtship period. So start enjoying that again. Lastly, why you want this relationship to work, ये हम उन्हें कम्युनिकेट करेंगे. इन सारे पैरामीटर्स पे हम उन्हें बात करके जब एक मैसेज से कम्युनिकेट करेंगे, जब वो आएंगी, एंड वी विल बी प्रैक्टिसाइजिंग इट, वी विल बी ट्राइंग एंड अंडरस्टैंड कि व्हाई वी गोना डू इट, हाउ वी गोना डू इट, व्हाई नॉट पारुल, व्हाई अंकिता, एंड हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. आई एम श्योर your intentions will be conveyed to Ankita and she will definitely understand you. After all, she's a partner, right? She will definitely understand you. Okay. I hope. I think Richa, this is main areas that I would like to talk. Definitely मेरा counseling session जो होगा, it was going to be a Zoom call one-on-one. It's going to turn out, how it turns out is a different story. But Yeah. these are the areas that I will be touching on in one session. My goals will be such. So you would like to add here something, or should I summarize my area? No, I Also? want to add something here. In fact, I want to ask you a question, शुभम. एक चीज हमने नहीं टच बेस करी पहले, वो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि शुभम, जी मैम. आप मुझे, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी, उनके आंसर दीजिए कि आप किस तरह के, आपका नेचर है, मतलब क्या आप आउट गोइंग हैं या आपको घर पे रहना ज्यादा पसंद है या आपको बहुत मिलना जुलना लोगों से पसंद है? नहीं मैम, मुझे घर पे रहना ही पसंद है मैम ज्यादा.
अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं जहाँ पे कोई गैदरिंग हो रही है, पब्लिक गैदरिंग, जैसे शादी या कोई और फंक्शन या कोई पार्टी, तो वहां पे डू यू वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओवर देयर, या फिर आपको ये पसंद है कि आप वहां पे कोई कॉर्नर देख के वहां पर आप बैठ जाएं बस अपने कुछ क्लोज लोगों के साथ, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या क्लोज रिलेटिव्स हैं, यू वुड लाइक टू डू दैट, और you want to be there in the center, being the center of attraction in that function or get together? मैम, मैंने पहले ये डिस्कस किया है कि मेरे को बिल्कुल भी बाहर घूमना या आउटसोर्सिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं किसी भी पार्टीज में जाता हूँ या कोई फैमिली फंक्शन होता है, मैं कोई कॉर्नर ऐसा पकड़ता हूँ जहाँ मैं अपने बहुत मेरे जो क्लोजली फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठूं, अपनी शेयरिंग करूं। मुझे सेल्फ सेंटर या मेरे को बिल्कुल भी मतलब अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ मैं कॉर्नर में बैठ के अपने क्लोज फ्रेंड के साथ जो अपना पर्सनल मैटर या जो हमारा कुछ भी फीलिंग्स या कुछ भी हमारे हंसी मजाक है, बस दैट्स आई वांट मैम। हम्म, ठीक है। अच्छा, अंकिता की अगर हम बात करें, तो अंकिता का नेचर क्या है? इज शी आउट गोइंग, या वो भी, उनका भी नेचर आपकी तरफ है कि घर पे ही रहना ज्यादा पसंद है उन्हें, या मिलना नहीं जुलना ज्यादा पसंद है लोगों से? नहीं मैम, शी इज टोटली ऑपोजिट फ्रॉम माई साइड। एक्चुअली लाइक जैसे मुझे बोल्ड कलर नहीं पसंद है, मैं लाइट कलर प्रेफर करता हूँ। एंड शी लाइक मैं वो एक तरह से अपने आप को इतना मेकअप, इतना अपने आप को लुक, इतना अपने आप को अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करे कि पूरी पार्टी, जो भी फंक्शंस, जो भी ओकेशन, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लाइक उसे बहुत इस चीज पे वो ज्यादा फोकस ऑन करती है मैम। मतलब वो अपने आप को थोड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के चलती हैं, यस मैम। अटेंशन सीकिंग यस मैम। एटीट्यूड है उनका थोड़ा। यस ओके, मैम। तो यहाँ पे हमको रिलेशनशिप्स में हम एक चीज, एक और हमें ध्यान रखनी होती है कि कई बार अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनका अगर नहीं सही से वो रह पा रहे हैं उस रिलेशनशिप में, तो वी मस्ट एनालाइज आवरसेल्व्स कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, तोड़ने को तो आप इमीडिएटली तोड़ सकते हैं कुछ भी, बट अगर आप बना के रखना चाहें, देन यू हैव टू फाइंड आउट वेरियस सॉल्यूशंस। वन ऑफ द सॉल्यूशन टू दिस इज टू फाइंड आउट कि हमारी पर्सनालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। So many a times two people who are in a relationship have strikingly opposite personality. So you must have heard opposites attract, तो वही हो जाता है उनके केस में। अब जैसे शुभम एंड अंकिता का केस है आपका, तो शुभम इज अ पर्सनालिटी टाइप जिनको हम बोलते हैं इमोशनल सजेस्टेबल। On the other hand, Ankita has a personality type which is physical suggestible. So striking personality differences. शुभम wants कि वो अब घर में रहें, उनको ज्यादा पसंद है। अंकिता को पसंद है कि बाहर जाएं घर से, बाहर घूमना पसंद है। शुभम does not get along with a lot of people, उनकी वही limited circle है, उसी में रहना पसंद करते हैं। Whereas Ankita likes to meet a lot of people, make friends with a lot of people. Shubham likes to wear light colored clothes. Ankita likes to wear bold color clothes. Shubham wants to choose a corner in a party, but Ankita wants to be the center of attraction. So these are striking personality differences, which is fine. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. Humans are different, personalities will be different. हमें सिर्फ एक बैलेंस स्ट्राइक करना है इन दोनों पर्सनालिटी टाइप्स के बीच में। तो थोड़ा सा शुभम आपको चेंज होना पड़ेगा उनकी तरफ ब्लेंड होने के लिए, और थोड़ा सा उनको आपकी तरफ ब्लेंड होने के लिए उन्हें अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, एंड देन इट विल बी कम्प्लीटली फाइन, ट्रस्ट मी। तो ये डिफरेंसेस मेरे ख्याल से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शादी से पहले मोस्टली लोग अपना बेस्ट पार्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के सामने, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन हिडन। पता ही नहीं Very true. चलता कि असली पर्सनालिटी क्या है। बट शादी के बाद व्हेन यू आर टुगेदर 24 आवर्स, देन यू रियलाइज कि कितने डिफरेंसेस हैं, क्योंकि तब असली चेहरा जैसे बोलते हैं इंसान का तब सामने आ जाता है। True तो expectations का. हाँ, एब्सोल्युटली। सो शुभम, इसमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, आपको मेरे ख्याल से डरने की तो जरूरत ही नहीं है कि पता नहीं क्या होगा मेरी शादी का, कुछ नहीं होगा। थोड़े माइनर डिफरेंसेस आपको लाने पड़ेंगे अपने बिहेवियर में, थोड़े से अंकिता को लाने पड़ेंगे, एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन। सो हमेशा रिलेशनशिप इश्यूज में हम लोग पर्सनालिटी असेस करते हैं लोगों की, सो दैट पीपल बिकम अवेयर कि हमारी कैसी पर्सनालिटी है, हमारे पार्टनर की कैसी पर्सनालिटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट।
So with the awareness comes knowledge and the will to change ourselves a little bit. So Yeah. that is So I, something. Yeah. Go on. yeah, sorry. Yeah. Can I like add on? Yeah, sure. Okay, so basically, people must be thinking here that psychology may there are no as such things, and we take up inventories like MBTI and all for assessing personality. Definitely, रिचा वो जो यहाँ बात कर रही है assessment की, वो hypnotherapy के basis पे बात कर रही है. So when we talk, if we feel in a counseling session, that would be something different. But ये hypnosis का इनका expertise है, जहाँ पे ये अपनी तरह से session में client को awareness create कराती है. It's just not the same EPJ and all, but we are thinking right now here. Okay, and now secondly, I just want to say that very beautifully Richa has explained that two people have different, personality dimension and opinion also. So Hmm. admiration and acceptance is very very important. So with that Yeah. note, I think I really would like to summarize my session that how we usually do. We set up a goal, we talk, and then we summarize. So Shubham, for you, it is a very brave thought and a very noble and good intention thought that you are seeking help from us, and you realize where you are. First of all, आपने क्या गलतियां की हैं उसके लिए आप गिल्टी भी हो. आप छुपाना नहीं चाहते थे, circumstances ने has pushed you towards that side, or there is always a solution, you can always come back. How to do it, we're going to help you, we're going to tell you. And one step has already been taken by us. We have told you, we've given you an insight, or a short flavor of how things can happen. So Richa ने आपके साथ hypno drama किया. And similarly, when you will come to counseling, we will talk, and उस movement पे different areas को deal करने के different strategies, which is gold. And उन्हें हम develop करेंगे with each and specific goal. Similarly, we'll help you with communication to Ankita. And once we are done, we would like to have Ankita also on our this platform, or probably during counseling session, so that we can both, together, both of you help you bridge this communication gap and help Thank both of you. So I don't Thank you know so कि much. आप भी कंफर्टेबल होंगे या नहीं अंकिता को लेकर आने के लिए, लेकिन अगर आप काउंसलिंग सेशन में भी लेकर आए, फाइन. नहीं तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे फॉलो अप पे लेकर आए, तो आई थिंक दैट विल बी अमेजिंग. Okay. So, Nandini, you are through, or you want to say anything else? Yes, just want to add here one thing last, just last one thing that to everyone, मेल्स को भी बहुत इमोशनल हर्ट होता है, एंड वी रियली रिस्पेक्ट दैट. Hmm. सो अगर आपको ऐसा फील हो दैट यू वांट टू टेक अ सजेशन, प्लीज कंसल्ट समबडी वेरी न्यूट्रल, जिससे आप ट्रस्ट कर सके, और जो आपको सजेशन दे विद सम विजडम, विद सम एक्सपीरियंस, so that you don't land up in situations similar to this. Please. Our have a lot of trust on us. We are your saathi. We're going to help you out, right? Thank you so much. Thank you, Richa. Thank you, Shubham. thank you so much, ma'am. Thank you. So, Shubham, as Sunandini has very rightly summarized your session, you are most welcome to, we will give you 1 to 2 weeks time, and you can see how things go. And you are most welcome to bring Ankita to sessions with us, counseling session ho ya hypnotherapy session ho. Even in hypnotherapy, we do a couple hypnotherapy session where we conduct the session with both people together. एंड आप उनको प्लीज नेक्स्ट जब भी आप आएंगे, हम आपके साथ एक फॉलो अप सेशन करेंगे, जैसे आज हमने अपनी पिछली कॉलर नेहा के साथ किया था. तो आप उनको लेकर आइए. वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सेशंस के बाद से. सो फ्रॉम यू ऑल्सो एंड फ्रॉम अंकिता एज वेल, वी वुड लाइक टू हियर कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा. इफ यू फील कंफर्टेबल, प्लीज ब्रिंग हर अलोंग टू आवर नेक्स्ट सेशन. Definitely, ma'am. ओके. तो आपके आपके साथ अब हम ऑफलाइन कैचअप
करेंगे for scheduling your counseling and hypnotherapy sessions. Thank you so Okay, much ma'am. for joining, Shubham. It was really brave of you. We are proud of you that you want to bring in changes and make your relationship healthy with your wife. Thanks a lot. Thank you so much. You can Thanks so much, now ma'am. drop off. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. So, Sunandini, before we wind up, just wanted to say that reiterate something that you were saying that males को भी होती हैं problems, emotional issues होते हैं, relationship issues होते हैं, because of the stigma, they really don't want to disclose this. They don't want to talk All right. about it. उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी अगर हम जाके बात करेंगे किसी से, हम हेल्प लेंगे रिलेशनशिप्स ठीक करने के लिए, या कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो या इमोशनल इशू हो, दे बिकॉज ऑफ द बिलीफ सिस्टम दैट इज देयर इन आवर सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट talk about such stuff. But we at Sarthi, Thank we you. Bye bye. Good night. can you hear me? Can you hear me, Sunandini? I think there is bad network. So, anyway, so thank you so much, everybody, for joining Sarthi. And I truly, deeply send out an invitation to anybody who is in some kind of relationship issues and they want us to help them. Please feel free to contact us at our number. We have sent that number on the chat on this live video. उस पे आप हमें contact करिए, और डोंट वरी, आपके सारे Very. क्रेडेंशियल्स हिडन रखे जाएंगे एंड वी विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग एनी ऑफ योर इंफॉर्मेशन. सो Yeah, I think there's some network issue at your side. If you can fix it. We can't hear you, Richa. no, on live I can hear myself. Okay. Okay, so guys, thank you so much So I think we for are done for today's episode. yeah, we are done for today's episode. There is some network issue happening, so we'll just wind up. Thank you so much. जिनको भी हमारा next caller बनना है, please send a message at 9818 666 594, and we would be happy to take you on as our next caller with all your details kept confidential. Thanks a lot. Team Sarthi from Mindspring will sign off now. Thank you. Have a good night. Yeah. Thank you so much, everyone.